Good evening, students. Today we are going to discuss about the experiment number 1, topic electricity. Now here, what we require to perform the experiments. The connecting wires, these are the wires we are using for the connection purpose. This kind of the wires we are using for the connection purpose. Okay. The galvanometer. Galvanometer, you know very well, it is a sensitive device. Here the galvanometer, I already connected the wire to galvanometers. How to connect, I will explain again. This is the galvanometer, the instruments. Here galvanometers, it will be the, if you are finding the pointer is in between. Now it indicates the both sides of current, positive as well as negative. It will deflect positive current on one side, and other if the direction of current is going to change, deflections are going to reverse. Means both the way is going to deflections. And voltmeter, it is a device to measure the voltage potential difference. We are always connecting voltmeter. How we are connecting? It is always we are connecting parallel to with the resistance. And after that, this is a ammeter for measuring the current. Here given the reading 1 to 5. The ammeter. These bulb are there. They are all are the DC bulbs. This is a bulb, torch bulb, DC bulb. Okay. Those we required. Again we have the bulbs are there here. These are the bulbs. Okay. With the help of bulbs we will discuss about the resistance in series as well as resistance in parallel. Bulbs are the cell of power source. This is a cell, pencil cell or cell we can say. It will be convert the chemical energy into the electrical energy. As well as this is the battery. It will be convert our the AC source into DC source. This is the battery. In our home, the current will be the AC, and with the help of that, we can able to convert the voltage in a DC mode. Here the knobs are voltage knob is there. The 0, 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8, 10, 12. Till 12 volt, we can change the potential difference. Okay, this is the battery. With the help of battery, we'll find one by one how to use and how to perform the experiments. I will show one by one. Galvanometer is a sensitive device. It will be shows the direction of current from which terminals. It will be deflecting on both the sides. With the help of galvanometer, we are able to measure the current as well as the potential difference also. Okay. DC means direct current. AC means alternating current. आपने घर पे जो लाइट आती है कौन सी आती है? अल्टरनेटिंग आती है ना? इसका वोल्टेज क्या है? 240 या 230 वोल्टेज होता है, बराबर है? पर अभी देखिए आपने घर पे जो सॉकेट में कोई पिन ऐसी डाले तो भी कोई डिवाइस काम करता है, ऐसी डिवाइस डाले तो भी काम करता है, उसका डायरेक्शन माइंड रहे क्या? नहीं. पर कुछ डिवाइस जो होते हैं जैसे आपका रिमोट टॉर्च लो, है ना, टीवी का रिमोट लो, टीवी का रिमोट का सेल का डायरेक्शन चेंज करो, रिमोट काम करेगा? अपना क्लॉक का डायरेक्शन चेंज करो, सेल का काम करेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डायरेक्शन इज मैंडेटरी. वो क्या है तुम्हारा डीसी सोर्स, जहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, वन वे से जा रहा है ना, तो वो क्या है डीसी सोर्स. एसी को क्या है तुम्हारा, उसको कोई डायरेक्शन, अपनी इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज. एक सेकंड में 50 बार क्या है फ्लक्चुएट होता रहता है ना, सबकी अलग अलग होती है. तो वो क्या है अल्टरनेटिंग करंट क्या है, क्यों ट्रैवल करते हैं अपन, वो भी देखना है आपको, आगे टॉपिक में है, वो भी बताऊंगा मैं आपको स्लोली जैसे जैसे. करंट सभी अच्छे है एक्चुअली, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन बताता मैं. एसी क्या है, एसी में लॉस कम होते हैं. एसी लॉन्ग ट्रैवलिंग करने के लिए अच्छा होता है, पर एसी में क्या होता है तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. आपने घर में जो कोई भी डिवाइस आप देखते हैं, कंप्यूटर हो दो, कुछ भी हो दो, ये अपना बोर्ड भी रहने दो, तो क्या घर में से अपना सप्लाई एसी आता है, फिर बाद में रेक्टिफायर से इसे कन्वर्ट करते हैं इसे डीसी में, फिर डीसी पावर सप्लाई अपन इसे देते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की लाइफ सेव करने वाला कौन है, तुम्हारा डीसी सोर्स है ना. एक स्टडी फ्लो में जाता है, घर वहाँ तक आए तक चलेगा एसी, फिर बाद में जो अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं मोस्टली अपन क्या करते हैं डीसी करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस सभी नहीं. अभी आप कंप्यूटर के पोर्ट देखते होंगे, कंप्यूटर के पोर्ट में कैसे भी वायर डालने आता है क्या अपने को? नहीं, उसके पर्टिकुलर पिन होते हैं, कलर वाइज ही वायर डालना पड़ता है. तो वहाँ पे वही डायरेक्शन से क्या पाथ करेगा. जहाँ पे अपन सेमीकंडक्टर देखें ना, वहाँ पे क्या है तुम्हारा वन वे डायरेक्शन, करंट का पर्टिकुलर पाथ से ही करंट फ्लो करेगा तो ये डिवाइस काम करेगा. जैसे कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, वहाँ पे उसके दो तुम्हारे नॉब होते हैं, एक छोटा पैर होता है, एक बड़ा पैर होता है. छोटा पैर किस लिए निगेटिव दिखाता है, बड़ा पॉजिटिव दिखाता है. जब आप उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाओगे और निगेटिव को निगेटिव लगाओगे तो ही वो काम करेगा. टर्मिनल चेंज करो तो काम करेगा क्या? नहीं, वो क्या होगा तुम्हारा डीसी सोर्स.
ओके। पर उसमें क्या है, डीसी में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रैवलिंग करती है वो डीसी में नहीं करती, वो एसी में होती है ना। उसमें लिमिटेशंस, दोनों के भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, पर मोस्टली दोनों भी डीसी कन्वर्ट करने आता है उसकी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर ब्रिज। तो रेक्टिफायर से अपन एसी को डीसी में कर सकते हैं और डीसी को एसी में भी कर सकते हैं, है ना। तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है अपने घर पे अप्रोक्सीमेटली कितनी 230 आ रही है, उसे अपने नीड के हिसाब से अपन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ाते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। आपके मोबाइल में होता है, देखो मोबाइल का कितना है चार्जर 33 वोल्ट, घर में तो लाइट कितनी आ रही है आपने 240 आ रही है, पर चार्जर में कितना है 33 वोल्ट लेते हैं, तो उसका मतलब आप क्या करें, वोल्टेज कम कर रहे हैं, वो क्या हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो हर इंस्ट्रूमेंट को कितना वोल्टेज लगता है उसके हिसाब से क्या करते हैं अपन, उसके करंट में भी क्या वेरिएशन लाते हैं, है ना। रेजिस्टेंस से भी क्या करते हैं, उसमें करंट कितना देना है, वेरिएशंस लाके अपन उसमें गैजेट्स का अपन इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे कोई भी गैजेट्स आपके घर पे आप खोल के देखे होंगे तो उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, है ना, आईसीज मिलेंगे। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वैसा अपन यूज़ करते हैं, उस हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए आप कनेक्टिंग वायर्स समझ में आ गया, वायर्स कौन से तुम्हारे, ये जो कलर दिख रहे हैं आपको, ये वायर्स ब्लैक और रेड कलर के। जनरली यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कलर दिया है आपको ब्लैक, जनरली अपन निगेटिव पोर्ट टर्मिनल को लगाते हैं और रेड पॉजिटिव को। खाली आप एक ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही लगाना ही ऐसे ही लगाना है बोल के, सिर्फ वायर क्या है तुम्हारी, इट इज कनेक्टिंग डिवाइस। ओके, द नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बताया, गैलोमीटर। गैलोमीटर ये डिवाइस है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, गैलोमीटर का पॉजिटिव। डीसी दिया है, डीसी वोल्टेज ऑफ कॉइल, इसके अंदर कॉइल होता है वाइंडिंग केस, है ना। अब इसके अगला लेसन देखना है अपने को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी अपन सिर्फ अभी एक इफेक्ट देखे अपन, कौन सा देखे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट थे, इसके बाद में हीटिंग इफेक्ट्स है, उसके बाद में मैग्नेटिक। केमिकल इफेक्ट्स मेरे ख्याल से आप लोअर क्लास में देख चुके हो, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, अनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट्स है। तो अभी अपने को अभी इलेक्ट्रिक पे प्रैक्टिकल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है तुम्हारा, ये रेड कलर है पॉजिटिव, और ये क्या है तुम्हारा ब्लैक है, क्या है नेगेटिव। तो कैसा काम कर रहा है देखो, अभी मैं क्या करता हूँ कन्वीनियंस के लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें एक वायर लगा देता हूँ, ये रेड को मैं रेड वायर लगाता हूँ, समझने को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो ये पिन दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है रेड वायर, है ना। तो सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन भी कर देता हूँ। ब्लैक के लिए क्या करता हूँ, ब्लैक वायर लगा देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब इसमें क्या है, आपको समझने में क्या है, गैलोमीटर क्या काम करता है, तुम्हारा करंट का पाथ बताता है ना, कहाँ से करंट जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। अपन करंट को हाथ लगा के देख सकते हैं क्या, तो फिर कैसे समझ में आएगा अपने को, डिवाइस के सबसे, है ना। अपन कन्वेंशनल डायरेक्शन है, करंट क्या है तुम्हारे कन्वेंशनल डायरेक्शन, आप देखिए, है ना, इधर आया जा रहा है, मैं हाथ लगा देखता हूँ करंट इधर से जा रहा है, समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। तो उसको दिखाने वाला कौन है, तुम्हारा गैलोमीटर। देखो अभी ये क्या है तुम्हारा सेल, ये क्या है आपका सेल, डीसी सोर्स है ना, ये भी डीसी सोर्स है, मैं यही लेता हूँ, इससे काम चल जाएगा। अभी एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, इसमें एक्चुअली बहुत कम वोल्टेज होना चाहिए था, इसका वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास होता है। चलो कोई बात, मैं खाली दिखा के उसको इमीडिएट बाजू में कर देता हूँ। एक टर्मिनल लेता हूँ मैं, कोई एक जना आ सकता है आपके पास है, आइए, आओ फटाफट आइए, जल्दी आइए, आओ आ जाइए, देखिए आइए, 2 जन आइए, आइए आइए, आप भी आइए फटाफट, जल्दी आइए। देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो तो अभी इधर साइड में उनको भी देखने दीजिए। देखो तो यहाँ पे आप सेल पकड़ो, देखो तो ये पे आपके जो सेल में है, इनके हाथ में क्या है, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये कैप वाला है ना, कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। ये प्लेन वाला सरफेस क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव। देखो तो एक सरफेस रखो, अभी क्या करो, एक जो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आप इसको टच करो, देखो अभी यहाँ पे आप निगेटिव को लगाओ, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखो, लगाओ निगेटिव की तरफ, क्या हो रहा है, देखो क्या है, गैलोमीटर निकाल दो, बहुत सेंसिटिव है इसमें, डिफ्लेक्शन इसमें क्या है, इट्स वेरी सेंसिटिव, थोड़ा भी वोल्टेज आता है, थोड़ा भी करना तो बहुत डिफ्लेक्शन ज़्यादा देता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि मुझे एक्चुअली कम वोल्टेज वाला चाहिए था, मुझे नहीं मिला, है ना। अभी फिर देखो एक बार, अभी क्या डिफ्लेक्शन ये साइड में गया था, अभी टर्मिनल जब चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड में, है ना। तो एक बार लगाओ, फिर से देखो एक बार, देखो एक बार, देखो एक साइड एक बार लगाओ, दोनों तरफ चेंज करो, एक ही साइड में दोनों, एक अलग अलग करो, लगा एक, अरे हाँ देखो देखो, हाँ तो जा रहा है, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, यहाँ पे जा रहा है, टर्मिनल चेंज कर दो, उधर जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन, हाँ मतलब क्या है तुम्हारा, एक अभी यहाँ पे करंट कैसा फ्लो होता है तुम्हारा, पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके नेगेटिव जा रहा है,
तो ये पाथ दिखा रहा है किस तरह से करंट जा रहा है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा तो अभी करंट का डिफ्लेक्शन ये डायरेक्शन में आ रहा है या ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव होने का पाथ कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैरी हो रहे हैं, तो इसमें से आपने को समझ में आएगा। अभी एक्चुअली क्या है तुम्हारा, इसके लिए गैलोमीटर अपन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंड्यूस करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। क्या है, जैसे कि आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसके अभी यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं अपन, मैग्नेट इसके आसपास लेके जाते हैं नजदीक रिलेटिव मोशन से, तो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो दिखाने के लिए इसका गैलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो मैंने इससे भी दिखाया आपको, समझ में आ गया कैसा काम कर रहा है गैलोमीटर, है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की तरफ एक में टर्मिनल चेंज करता हूँ, तो एक बार डिफ्लेक्शन ये साइड में, टर्मिनल चेंज कर दो, डिफ्लेक्शन उधर के साइड में, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है तुम्हारा, जब करंट नहीं है जब क्या दिखा रहा है तुम्हारा, स्टेबल दिखा रहा है, जीरो पे दिखा रहा है, जब कोई करंट नहीं जब क्या दिखा रहा है, जीरो पे। समझ में आ गया, देखिए और क्या देखना है आपने को, देखो गैलोमीटर इज अ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट्स मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, क्या करना था है, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, है ना, बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट का था, मैं पहले ही बताया, इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, थोड़ा भी बैटरी, इतनी सी बैटरी के लिए डिफ्लेक्शन पूरा आउट ऑफ स्केल गया हो, है ना, इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर, इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, एक कॉइल होता है सोलोनाइड के जैसा, इसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, ऐसा कॉइल होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो, द कॉइल ऑफ सस्पेंडेड वायर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या करता है, करंट आने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अगला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका फैन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेट में, और मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा फैन तुम्हारा रोटेट होता है। द पॉइंटर मूव्स रिस्पॉन्स ऑन द करंट्स पासिंग थ्रू द कॉइल, इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन दिखाया उसने, मैग्नीट्यूड भी दिखाया। अभी मैग्नीट्यूड यहाँ पे अपन देख नहीं पाए, क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन पूरा आउट ऑफ स्केल गया था, क्योंकि छोटा बहुत कम करंट चाहिए था अपने को, है ना। तो क्या इसमें क्या है, इसकी रेंज क्या कम है, इसलिए अपन मैग्नीट्यूड नहीं मेजर, लेकिन बहुत छोटा करना है तो मैग्नीट्यूड भी अपन मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया देखो मैग्नीट्यूड आपको, यहाँ पे +30 -30, समझे, गैलोमीटर क्लियर नाउ। नाउ द नेक्स्ट डिवाइस, गैलोमीटर के बारे में दिखाया देखो, यहाँ पे मैग्नेट होता है अंदर, है ना, सोलेनाइड, ये पे साउथ और नॉर्थ पोल, यहाँ पे उसका डिफ्लेक्शन एक साइड में जाएगा और अपोजिट साइड में जाएगा, है ना। और ऐसे थंब रूल भी आ गया आपको, आ गया, जब जब तुम्हारा करंट का डायरेक्शन दिखाता है तो कर्ल फिंगर भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, है ना। तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक होने के बाद में। देखिए तो यहाँ पे एमीटर, एमीटर इज अ डिवाइस इज यूजफुल फॉर द मेजरिंग करंट। ये क्या दिखाता है आपको, करंट दिखाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो से, देखो स्टार्टिंग क्या है, जीरो। ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस करंट आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, जब वोल्टेज बढ़ोगे जब क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ेगा, है ना। ओम्स लॉ का रिलेशन है, तो अपन वो भी वेरीफाई कर सकते हैं आज, है ना। मैं वी बढ़ाता हूँ तो करंट भी क्या बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, सपोज कांस्टेंट, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या है, डिवाइस बैटरी है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे में वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो इसके मोमेंटरी डिफ्लेक्शन भी क्या हो गए तुम्हारे, चेंज होती जाएगी, है ना। और एमीटर कैसे लगाते हैं अपन, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। एमीटर कैसे लगाते हैं अपन, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये भी देखेंगे अभी कैसा लगा रहा है मेरा एमीटर, कैसा लगाएंगे देखें। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वायर लेता हूँ, इसको सीरीज में लगा देता हूँ, यहाँ पर ये वायर, है ना, कैसे भी लगाओ, है ना, ये वायर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपको समझ में आने के लिए बल्ब यहाँ पे लगा देंगे अपन इसको। यहाँ पे कुछ ये है क्या ऑलरेडी, चलो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी पिन में कैसी भी तरह से एक पाथ खत्म कर देता हूँ मैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड और खाली वायर क्या कर रहे तुम्हारे, करंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल भी। देखिए तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको एमीटर को करंट लगा दिया। तो ये वायर क्या करता हूँ मैं, एक तरफ वायर पॉजिटिव को लगा देता हूँ, है ना, और एक टर्मिनल क्या करता हूँ मैं उसके
नेगेटिव वाला टर्मिनल जनरली नेगेटिव वाला ब्लैक से दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए सर्किट समझ में आ गया आपको। अभी यहाँ पे बल्ब नहीं है तो सर्किट ओपन हो जाएगा, इसलिए क्या करता हूँ मैं बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पर। एक ही वोल्ट लेता हूँ मैं पहले करंट वोल्टेज, दो वोल्ट का एक इसमें ये, अरे कोई बात नहीं। आ गया करंट इसमें, आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अभी देखो इसको चालू कर दिया मैंने। नाउ बैटरी स्टार्ट है ना, बैटरी स्टार्ट करने से क्या समझ में आएगा आपको, इसमें इंडिकेटर है रेड कलर दिखाएगा आपको। अच्छा देखिए आप आ भी सकते हैं नज़दीक। तो यहाँ पे क्या है देखो, तो यहाँ पे रेड कलर पॉइंटर दिख रहा है। यहाँ पे मैं बंद करता हूँ तो रेड पॉइंटर गया, एलईडी गया है, बंद हो गया आपका, है ना। यहाँ पे गया तो एलईडी क्या हो गया, आइए आइए सभी आइए आइए देखो। तो यहाँ पे जब मैं क्या करूँ, अभी इसमें क्या है ये वायर जो पाथ लगाया मैंने, कैसे लगाया मैंने, सीरीज में लगाया। यहाँ से आ जाइए, ऐसा आ जाइए। देखिए तो ये पाथ क्या होगा तुम्हारा, देखो पॉजिटिव से यहाँ पे निकल रहा वायर, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है, ये पॉजिटिव, फिर यहाँ से निगेटिव गया और निगेटिव से क्या होगा, सर्किट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बराबर है। देखिए ये पॉजिटिव वायर है ना, पॉजिटिव से यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। तो ये क्या है, पॉजिटिव का वायर क्या गया, पॉजिटिव को। तो ये वायर क्या है, फिर निगेटिव, निगेटिव से फिर क्या इसमें क्या है, पॉजिटिव से लेके फिर निगेटिव पर लूप कंप्लीट हुआ कि नहीं आपका, लूप कंप्लीट हुआ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको चालू कर दूंगा। चालू करने के बाद में इसमें वोल्टेज आएगा, तो आना चाहिए। तो इसमें तो हो सकता है कि खराब एक भी बल्ब डैमेज हो तो इसमें करंट नहीं आएगा। कनेक्शन क्या है, एक ही बल्ब रन नहीं, देखिए कनेक्शन इसको टाइट कर देंगे, देखिए आ जाएगा, आना चाहिए। एक लिखे दूंगा 0 पे, हाँ राइट, 2 पे भी नहीं है, चालू है ना रे। नहीं बल्ब शायद क्योंकि ये 0.5 के बहुत छोटे बल्ब है, वो दूसरे बल्ब लगाए देखेंगे, हो सकता है बल्ब डैमेज हो सके। सीरीज में एक भी बल्ब रहता है तो काम नहीं करते हैं। हाँ देखो शायद इधर का शॉर्ट होगा। बल्ब शॉर्ट होता है तो काम नहीं करता है। अभी इससे तो फिर बैटरी से बल्ब चेक करके देखेंगे एक बार। अभी क्या करता हूँ, बल्ब चेक करता हूँ बैटरी से। फिर इंस्ट्रूमेंट खराब है, कौन सा क्या, नहीं इसमें एक्चुअली मीटर को लगा दो बस, ये अंदर मीटर है ना, यहाँ पे लगना तो बस। नहीं नहीं किधर भी होता, डीसी है खाली। हाँ 55 का चाहिए, ये इसका मतलब बल्ब खराब है, बल्ब में ही है। बल्ब नहीं लगा तो फिर क्या गिनेगा। हाँ 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 देखेंगे, देखिए तो पहले चेक करेंगे। हाँ ये बल्ब चालू है, हाँ ये चालू है, चलो एक ही लगाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो इसको एक लगा दिया बल्ब मैंने, और यहाँ से इसे यहाँ पर, और यहाँ से, वेरी गुड, और ये यहाँ पर देखिए लाइट चालू हो गया क्या, फिर से बंद हुआ। हाँ आ गए, देखो 2 वोल्ट पे काफ़ी पावर है ना। यहाँ पे आपको रीडिंग दिख रही है क्या कुछ, देखो रीडिंग दिख रही है क्या यहाँ पर, इधर से आइए, हाँ थोड़ी दिख रही है ना। अभी मैं होल्ड बढ़ाऊंगा तो अभी एक्चुअली छोटा बल्ब है,
तो अभी 2-3 बल्ब लगाता था मैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे जीरो, अभी देखो जीरो हो गया, इधर देखिए जीरो हो गया, अभी देखो आ गया रीडिंग इसमें। तो क्या करेंगे, और एक बल्ब लगाएंगे अपन थोड़ा सा, क्योंकि 2 वोल्टेज पे भी क्या है, अभी सपोज ये काम नहीं करता है तो दूसरा बल्ब लगा देंगे यहाँ पर। देखिए धीरे धीरे देखो ध्यान से देखिए, अरे देखिए, तो अभी इसका मतलब ये बल्ब काम का नहीं है, वो बल्ब चल रहा था। तो ये शायद कभी कभी क्या होता है, होल्डर भी खराब हो तो भी काम नहीं करता है। हाँ देखो ये बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज बढ़े तो करंट बढ़ेगा। हाँ देखो अभी क्या देखो, अभी दिख रहे 2 बल्ब लग रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो रे देखो, तो यहाँ पे क्या है, अभी 2 वोल्टेज पे इसका ब्राइटनेस कम है, सीरीज में है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ गया, यहाँ पे करंट भी बढ़ गया, नहीं फुल नहीं, देखो यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जैसा बढ़ रहा है वैसा करंट भी, देखिए समझ में आ गया, करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे, समझ में आ गया आपको ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, व्हेन वी आर ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द करंट, तो करंट बढ़ाए बाद क्या हो रहा है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है ना। करंट बढ़ने से क्या हो रहा है तुम्हारा, वोल्टेज बढ़ाने से तुम्हारा करंट भी बढ़ रहा है, ऑब्जर्व करें ना। तो टेम्परेचर करंट मेजर कैसा करोगे आप, यहाँ पे दिया देखो एमीटर है ना, तो यहाँ पे जो दिया है रीडिंग, यहाँ से इसमें कुछ लाइन्स है, 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, इसके बीच में कितने 5 मार्क्स है, 1 2 3 4 10 मार्क्स है ना। तो 1 का मतलब क्या है 0.1 0.2 0.3, इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसकी रीडिंग निकालते हैं। समझ में आ गया है एमीटर के बारे में। देखो तो एमीटर के बारे में, एन एमीटर इज डिवाइस दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल करंट्स इज एन एम्पियर, एम्पियर मेजर कर रहा है। तो इट कैन बी मेजर द बोथ द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो अपन डायरेक्ट करंट मेजर नहीं करे यहाँ पर, सिर्फ डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग मेजर नहीं करे अपन ने, डायरेक्ट करंट मेजर करे। अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए फिर ये डिवाइस तुम्हारा क्या है, सफिशिएंट कितना वोल्टेज देना, कितना रेजिस्टेंस लगाना, उस पर डिपेंड करेगा ये, है ना। रेजिस्टेंस लगाने के बाद में अपन अल्टरनेटिंग मेजर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज, बिकॉज कैसे पहले बताया हमने, कैसे लगाना है, अपने बल्ब कैसे लगाए, अपने सीरीज में लगाए, फिर बाद में अपन मेजर करें, है ना। इसके लिए इसलिए क्या करना है, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, is connected in series because the current remains the same in series, and connections are also, the resistance of an ammeter is very small, due to which doesn't affect the currents due to the measures, current पे कोई affect नहीं हो रहा। समझ में आ गया एमीटर के बारे में। चलो और दूसरे डिवाइस के बारे में बताता मैं आपको, नेक्स्ट वाला देखो, बताता सही बताता, listen now, the ammeter and its function, how it's work, listen, the ammeter and its function, and ammeter is instruments used for the measuring the electric currents, use of unit is ampere। listen ये देखो, अब यूनिट क्या है उसका, एम्पियर है। इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, देन आल्सो वी आर राइटिंग इन स्मॉल केस। जब यूनिट लिखते हैं अपन, एम्पियर क्या है तुम्हारा नेम ऑफ साइंटिस्ट है, जब आज यूनिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब क्या लिखना है आप लोग को, हमेशा ए इन स्मॉल केस ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। तो आपको इंग्लिश में ग्रामर में सिखाया है, किसी भी नेम ऑफ पर्सन है तो क्या करना है, अपन जनरली कैपिटल लिखते हैं, है ना। पर यूनिट जब लिखते हैं, जब क्या करना है आपको, ऑलवेज इन अ स्मॉल केस। एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द पाथ। कैसा लगा अपन ने, एक 2 बल्ब लगाए, 2 बल्ब के बाद में सीरीज में एमीटर लगाए, फिर बाद में अपन लूप कंप्लीट कर दिए, बराबर है, सीरीज में लगाना है। एंड द बीइंग्स द मेजर्स, सेटिंग द एमीटर्स अप एंड पैरेलल विद द क्रिएट ए शॉर्ट सर्किट। तो पैरेलल जब बना जाए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होते क्या होगा, तुम्हारा स्पार्क हो जाएगा वहाँ पर, है ना। क्या तुम्हारे काम नहीं करेंगे, शॉर्ट सर्किट भी बताता मैं आपको अभी कैसा होता है वो। हाउ डज एन एमीटर वर्क्स, एमीटर काम कैसा कर रहा है। एमीटर वर्क्स ऑन द मेजर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स बाय मेजरिंग द करंट्स थ्रू द सेट ऑफ कॉइल विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड इंड्यूस, है ना। तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस कम है, इसके लिए क्या हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। एंड इंडक्टिव reactance, you must connect an ammeters in the series while measuring the currents of the circuits. The low impedance of the ammeters measures won't lose much power. Symbol of ammeter क्या दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, one side is positive। देखो ये क्या है तुम्हारा DC है, DC है एक, ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरा क्या है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है। और नॉर्मल सिंबल ऑफ एमीटर इज A
द मेंशन विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए दिखाते एक साइड दिखाते पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या दिखाते अपन नेगेटिव। यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है 0 से हो रहा है, 0 से क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन तुम्हारा कंटिन्यूसली आते रह रहा है। द नॉर्मल सिंबल ऑफ एमीटर इज ए इज मेंशन इनसाइड द सर्किट। देखो यहाँ पे बैटरी में दिखाया है, यहाँ पे बैटरी में यहाँ पे पावर सप्लाई चालू किया अपने, प्लस यहाँ पे बल्ब लगा दिए, बल्ब के बाद में लूप कंप्लीट कर दिए, तो अपन अपने को यहाँ पे कितना करंट आया कितना डिफ्लेक्शन आया अपने को समझ में आ गया। समझे, वोल्टेज जब बढ़ाए, जब पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ाया अपन, जब ब्राइटनेस भी आ गया और वोल्ट मीटर भी डिफ्लेक्शन भी चेंज हुआ। समझ में, इसका मतलब पोटेंशियल जब बढ़ रहा है जब करंट भी बढ़ रहा है आपका। द नेक्स्ट वन, ये कौन सा डिवाइस, अभी वही ब्राइटनेस का देखो, अभी लूप कंप्लीट ही नहीं है आपका। पहला आपने देखिए बल्ब लग रहा था क्या अपना, नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या है अभी भी मैं देखता हूँ, देखो सेम इंस्ट्रूमेंट्स, अभी यहाँ पर देखो दिखा दो, यहाँ पे क्या है अभी 2 बल्ब लगा दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ पर बैटरी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 बल्ब है ना, अभी मैं लगाता हूँ 2 वोल्ट पे, तो यहाँ पे बल्ब, इसमें बल्ब ही नहीं है देखो, तो काम कर रहा है क्या ये, नहीं। जब इसमें जब बल्ब आ जाएंगे जब भी क्या करेगा तुम्हारा वो सर्किट जब कंप्लीट होगा, जब व्हेन द पाथ इज गोइंग टू कंप्लीट देन ओनली इट गोइंग टू वर्क। एक बल्ब भी तुम्हारा शॉर्ट होगा देन आल्सो इट विल बी नॉट वर्क, एक भी बल्ब शॉर्ट होगा तो भी काम नहीं करेगा। देखो अभी देखिए, तो एक बल्ब लगा दो हमें सिर्फ, देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पे लगा दिए बल्ब, देखिए बल्ब काम कर रहा है, बड़ा वो भी करता है, एक स्टेप, ये बल्ब काम कर रहा है। अभी सपोज इसमें से एक टर्मिनल भी मैं ओपन रखता हूँ, अब लग रहा है बल्ब नहीं, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सर्किट क्या है ओपन है, ओपन रहे तो काम नहीं करेगा, क्लोज रहे तो काम करेगा। समझ में आ रहा है। हर एक की कैपेसिटी होती है, कितना वोल्टेज देना है क्या नहीं। अभी एक्चुअली ये बल्ब, अभी आपको ज़्यादा बल्ब लगाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, मैक्सिमम बल्ब कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, सीरीज में, यहाँ पे वोल्टेज आएगा। अभी मैं एक बढ़ाता हूँ तो चलेगा, और उससे ज़्यादा को तुम्हारा क्या हो जाएगा, बल्ब तुम्हारा वो अंदर का जो फिलामेंट है ना, टंगस्टन बोलते उसे, वो फिलामेंट क्या हीट होकर क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, तो बल्ब ऑटोमेटिकली तुम्हारा खराब हो जाएगा। इसलिए लिमिट में अपने को वोल्टेज देना है उसकी ताकत के हिसाब से। देखो यहाँ पे अपन देख लीजिए, देखिए तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए, द वोल्ट मीटर इज डिवाइस मेजर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसे कैसा लगाना पड़ेगा अपने को, इट इज ऑलवेज विद द पैरेलल। इसे कैसा लगाओगे अपन, पैरेलल में, कितने वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो अभी एक्चुअली अपन पोटेंशियल इससे ही दे रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या है उतना ही आएगा, खाली पैरेलल में लगाना है। Voltmeter is known as the voltmeters as instruments measure the voltage of potential difference between the 2 points of an electronics and electrical circuits। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो इसमें दिखेगा। यूजुअली द वोल्टमीटर इज यूज फॉर द अल्टरनेटिंग करंट्स एज वेल एज डायरेक्ट करंट, दोनों के लिए भी काम में आएगा, अल्टरनेटिंग एज। अब आप प्रैक्टिकली देखते हो यहाँ पे सपोज 2 वोल्ट है, इसमें 2 वोल्ट आना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ लॉसेस भी होता है, कुछ रेजिस्टेंस भी होते हैं, है ना। देखेंगे अभी अपन वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो जो वायरिंग है, ये वायर में क्या कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, पैरेलल में लगा रहा हूँ मैं अभी। देखिए देखिए ना, देखिए इधर रहने दो, now I connected here the bulb, open,
एक्चुअली कौन सा बल्ब है देखना था अपन ने। हाँ देखिए, अब देखिए ये बल्ब मैंने लगा दिया है। अभी क्या करूँगा मैं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसमें क्या करूँ मैं, दो वायर लेता हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव डालता हूँ और एक निगेटिव में भी क्या करता हूँ मैं, निगेटिव वायर। तो अभी क्या करो, अक्रॉस दैट बल्ब, ये बल्ब के अक्रॉस में क्या करता हूँ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाता हूँ। ये बल्ब के अक्रॉस लगाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लगा रहा हूँ और यहाँ पे। समझ में आया कैसा कर दिया मैंने। इसके क्या है, बल्ब क्या कर, बल्ब के अक्रॉस क्या कर दिया मैंने, पोटेंशियल लगा दिया। समझ में आ गया। देखिए क्या कर दिया मैंने, अक्रॉस द बल्ब, बल्ब के सामने वोल्ट मीटर, फिर क्या करो मैं अभी से करंट दे रहा हूं। देखिए बल्ब लग रहा है तो यहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिख रहा है। यहां पर देखो, यहां पे दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे आपको डिफ्लेक्शन भी आएगा। समझ में आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, वोल्टेज कितना है वो मेजर करने के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन, उसे सीरीज में ही लगाते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये वायर के क्या करा मैंने, बल्ब के क्या करा, सीरीज में लगाया। बल्ब है ना, ये वायर किस में लगाया था, पॉजिटिव लगाया था, और वायर नेगेटिव लगाया था। इसके पैरेलल में क्या लगाया था मैंने, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगाना है आपको, पैरेलल में लगाना है। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन, वोल्ट मीटर आल्सो नोन एज द वोल्टेज मीटर्स एंड इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे दिखाया देखो, V हमेशा क्या लगाया अपन, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। रेजिस्टेंस कौन सा है अपना, ये बल्ब यानी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है तुम्हारा, बल्ब यानी रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे आप निकाल सकते डायग्राम, ये बल्ब है तुम्हारा, रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, बल्ब है। कम एमीटर कैसा लगाया अपन, हमेशा सीरीज में। जब क्या होल्ड बढ़ा है, जब क्या बढ़ रहा था तुम्हारा, करंट भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना। तो होल्ड बढ़ने के बाद क्या हो रहा तुम्हारा, करंट बढ़ रहा था। इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। जो वायर का रेशियो, ये बैटरी है तुम्हारी, है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे वही दिखा है, वोल्ट मीटर है तो यहाँ पे बैटरी लगा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दो कनेक्ट कर दिए, लूप कंप्लीट था तो क्या इसका मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लूप कंप्लीट नहीं था जब यूज में भी नहीं आ रहा है डिवाइस, और तुम्हारा डिफ्लेक्शन भी नहीं दिखा रहा है। नाउ आफ्टर दैट, हाँ शो टाइम के बाद में ये देखना है आपको। देखो वोल्ट मीटर, अच्छा देखो ये है, ये सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के लिए क्या करना है अपने को, सीरीज का मतलब क्या है, एक के बाद में एक, है ना। तो पैरेलल नहीं हुआ ना, देखो तो अभी क्या है, हाँ गो गो गो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, अभी देखिए सीरीज में लगाने के लिए क्या करना है आपको, बल्ब क्या करना है, एक लाइन में लगाना है। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो इसमें यहाँ पे एक बल्ब है ना, तो इसके बीच में और एक होल्डर लगा देता हूँ मैं, एटलीस्ट 2-3 होल्डर लगा देता हूँ। तो सीरीज में है तो क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है पता है अपने को, सीरीज में आए तो क्या होता है, एक डैमेज हुआ तो दूसरा कोई भी काम नहीं, डिवाइस काम नहीं करेगा, और दूसरा क्या है उसमें ब्राइटनेस भी कम आएगा। सीरीज में क्या होगा, ब्राइटनेस भी कम आएगा, और इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा ज़्यादा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अ ग्रेटर, बराबर है कि नहीं। तो मैं क्या करो, यहाँ पे एक और एक बल्ब लगा दिया। अब इसमें एक्चुअली मैंने अलग करना चाहिए था, कौन सा डैमेज है वैसे रख दिया मैंने। आइए आइए, आपकी मदद जरूरी है बहुत। हाँ देखिए अभी यहाँ पे क्या कर दिया अपन, देखो ये कितने बल्ब है अपने, 3 है क्या। तो यहाँ पे लगाओ एक पॉजिटिव में, यहाँ पे लगाना है नेगेटिव में, और यहाँ पे बल्ब जो है, और एक बल्ब कहाँ था, चलो इसको लगाओ के यहाँ पर। ये अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे अपन। समझ में आया कैसे करा कनेक्शन मैंने। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाद में एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, और तीसरा बल्ब है, 3 बल्ब लगा दिया लाइन में। अभी 0 वोल्टेज है, कुछ नहीं लग रहा है ना। तो अभी इसका मतलब इसमें कोई तो एक बल्ब क्या है तुम्हारा डैमेज है। तो कौन सा डैमेज, एक भी डैमेज है तो काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, दूसरे बल्ब चेक करके देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। 0 पे नहीं बढ़ाया था मैंने, अभी फिर कर दिया कम, है ना।
हाँ देखेंगे, वो भी देखेंगे, सब सब वन बाय वन देखेंगे। देखो तो नहीं, देखिए तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे बल्ब काम ही नहीं कर रहा है ना, एक भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, कितना भी पावर जो बढ़ाओ करंट पास कंप्लीट नहीं हो रहा, डैमेज भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए अभी क्या करता हूँ मैं इसमें, अभी कौन सा बल्ब खराब है मुझे चेक करना है, तो कैसा करूँगा मैं, वन बाय वन चेक करूँगा। अभी सर्किट शॉर्ट सर्किट करता हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट करने के लिए क्या करूँगा मैं, पहले ये चेक करूँगा ये यहाँ ये अच्छा है या नहीं है, इसको यहाँ पे डाल दिया, ये लग गया, तो इसका मतलब ये बल्ब क्या है, ओके है। तो फिर आगे का बल्ब, अभी इसका मतलब अभी आगे का बल्ब मैं चेक करूँगा, अभी इसको 2 किलो आगे देखता हूँ, अभी इसका मतलब 2 लगते हैं, तो इसका मतलब 2 बल्ब बराबर है। हाँ देखिए क्या है, दोनों भी, ये भी सही है, इसका मतलब ये तुम्हारा डैमेज है ना, इसका मतलब इसमें क्या है, फॉल्ट है, तो ये अपन चेंज कर देंगे, तो इसके जगह पे दूसरा ले लेंगे, है ना, यहाँ पे होल्डर पे लगा दो इसको, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, लगा दो। रेजिस्टेंस यानी बल्ब, बल्ब क्या है अपना, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखिए इसके अंदर क्या है तुम्हारा, वायर है, टंगस्टन वायर है, अरे देखिए सीरीज में आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी मैंने बल्ब दूसरा लगा दिया, अभी काम करता है ना, देखेंगे कर रहे हैं, देखो बढ़ेंगे, अब देखो बड़ा से बड़ा सा इसमें बढ़ा सकते हैं, देखो डिम आ रहा है, पावर बढ़ रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है, और ब्राइटनेस बढ़ेगा, हाँ चलो इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सीरीज में है ना, इसमें ब्राइटनेस बढ़ेगा सिर्फ। अभी इसमें एक भी शॉर्ट होता है तो कोई भी काम नहीं करेगा। और 12 में करूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, 1 मिनट और एक बार बढ़ा देंगे, तो जितने बल्ब बढ़ेंगे उतना क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइट बंद कर देंगे, 2 मिनट को एक ही लगाना है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, बल्ब बड़ा लगाना पड़ेगा आपको। हाँ 10 तक करता है, आप भी करते 10 सीरीज में ही है। हाँ देखिए अभी बढ़ाना है वोल्टेज, 40 है क्या हो? हाँ हाँ नहीं 4 नहीं, लग गए 4, कितना करना है वोल्टेज, 12 करूँ, देखो 12 वोल्टेज तक, समझ में आ रहा है। अभी देखियो, तो अभी सपोज यही अभी कॉम्बिनेशन है ना, ये कितने बल्ब है इसमें, 4, इसमें एक भी सीरीज में होता है, एक भी डैमेज तो काम नहीं कर रहे है ना, और मैं वोल्टेज कम कर रहा हूँ, सपोज अभी मैं कम कर रहा हूँ, ब्राइटनेस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, यहाँ पे अभी कितना है इसमें, ब्राइटनेस 2 पे है ना, एकदम बहुत लाइट पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है पॉइंट बढ़ते जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, चारों को क्या करता हूँ, पैरेलल में लगाता हूँ, जब वोल्टेज इसमें ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक डैमेज भी होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, सबको पैरेलल में करता हूँ। कैसा करता हूँ पैरेलल में, देखिए अभी तो इसके पैरेलल में इसको नीचे वाले को लाता हूँ, बराबर, अभी ये आगे रख दिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए, तो एक वायर और लगेगा अपने को, पैरेलल बोलते क्या करना है, एक के नीचे लगाना है बल्ब को, 4 लगेंगे पैरेलल में। अभी अपन पैरेलल में 4 लगाने के बाद में थोड़ा भी वोल्टेज होता है तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा हो गया, देखिए तो अभी मैंने क्या करा है, एक के पैरेलल में दूसरा है, और इसके पैरेलल में ये तीसरा भी लगा देता हूँ। यहाँ पर तीसरा पैरेलल लगाने के लिए करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ पे एक बल्ब को एक साइड, और यहाँ पे भी एक साइड लगा देता हूँ, और यहाँ पर का इधर के साइड लगा देता हूँ।
ये क्या होगा, अभी 3 बल्ब तुम्हारे पैरेलल में हो गए। 3 बस है क्या? देखिए ये क्या कर दिया मैंने, अभी 3 बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में लगाया। चारों लगाओ, चलो चारों लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वायर इधर, हाँ तो यहाँ पे क्या करा मैंने, चारों जो जो बल्ब जो क्या करा मैंने, अभी एक दूसरे को पैरेलल में लगा दिया। और जो दूसरा जो सेफ्टी वायर लेता है वो एक ये चारों का कॉमन पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, ये कॉमन पॉइंट है, बराबर है। तो यहाँ से कॉमन पॉइंट में से क्या करो, एक वायर लेता हूँ और एक, और वो डालता हूँ मैं यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देता हूँ और नेगेटिव में। तो यहाँ से डालता हूँ इसको पॉजिटिव में। आपको कनेक्शन करने आना चाहिए पॉजिटिव पैरेलल में और सीरीज में भी, और नेगेटिव का अब क्या होगा, तुम्हारे चारों भी क्या होगा, तुम्हारे पैरेलल में आ गए। ये एक, उसके पैरेलल में दूसरा, तीसरा निकल गया। तो अभी देखो ब्राइटनेस कुछ कम हो रहा है इसमें, हाँ चलो इसमें एक आधा बल्ब शॉर्ट भी कर देता हूँ मैं, एक आधा बल्ब सपोज काम में निकाल दे रहा हूँ मैं, हाँ, तो भी काम कर रहा है। तो बल्ब डैमेज जो हो गया वो, हाँ एक ही लगाए तो भी क्या हो जाएगा, उतना ही आ जाएगा, लगा देंगे। देखो ब्राइटनेस क्या है, कम वोल्टेज कम करो तो कम हो जा रहा है, ब्राइटनेस बढ़े तो बढ़ जा रहा है ना, समझ में आ गया। तो बस उतना ही होगा, खाली सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ेगा। चलो सब समझ में आ गया ना आपको, हाँ चलो थोड़ा देर के लिए कर सकते हैं, हाँ देखो गया वो, हाँ चलो। तो मैक्सिमम आप इंटेंसिटी करोगे, हो गए, समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है और सीरीज में क्या हो रहा है। ओके हियर इन सीरीज व्हेन वी आर इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है जब क्या हो तुम्हारा, इसमें ब्राइटनेस बढ़ रहा है, पर इसमें क्या है तुम्हारा ब्राइटनेस उस एक के लिए भी उतना ही है, दो के लिए भी उतना है, और एक आधा बल्ब तुम्हारा शॉर्ट भी होता है तो भी ये 2 बल्ब फार्म में कर रहे हैं, बाकी बल्ब जैसे एज इट इज काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिजल्ट जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या है ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल वन, यहाँ पे इंडिविजुअल से क्या ज़्यादा आ गया, पर यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज लेस दैन द इंडिविजुअल वन। हर एक बल्ब से क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज़्यादा हो गया, करंट क्या हो गया तुम्हारा ज़्यादा हो गया। इसलिए अपन इसमें क्या कर रहे थे, अपन लिमिटेड करंट सप्लाई कर रहे थे, समझे, हाँ देखिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, सीरीज एंड पैरेलल। द एडवांटेज ऑफ पैरेलल, क्या एडवांटेज पैरेलल के, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम्हारे इसमें, जो है करंट डिवाइड हो रहा है, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है तुम्हारा कम हो रहा है, रेजिस्टेंस भी इसमें कम लग रहा है। द सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक आधा इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी होता है तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द ईच अप्लायंसेस गेट्स फुल वोल्टेज, सबके लिए फुल वोल्टेज मिल रहा है। सीरीज में वैसा था क्या, नहीं है ना, वोल्टेज बढ़ाना पड़ रहा था अपने को, एक रेजिस्टेंस एक भी डैमेज हुआ तो काम नहीं कर रहा था। वन ऑफ अप्लायंसेस इज स्विच ऑन और ऑफ, अदर्स आर नॉट अफेक्टेड। इसमें क्या था, बंद निकाल के देखे बल्ब अपन तो भी बाकी के 3 काम कर रहे थे। द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट्स थ्रोन एंड अप्लायंसेस ईच, करंट क्या डिवाइड कर रहा है, हर एक क्या अलग अलग है इसमें। थ्रोन द अप्लायंसेस, ईच अप्लायंसेस गेट्स प्रॉपर करंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। In parallel combinations, it is very easy to connect or disconnect a new appliances without affecting the working of the others. तो दूसरे पे अफेक्ट नहीं होगा जो अपन जब कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में क्या है, देखो अभी सीरीज में एक ब्रेक हो गया, आगे काम कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, ये ऐसा गया तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे ब्रेक हो गया तो आगे सप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया है सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे एक आधा ब्रेक हुआ तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये करेगा, ये नहीं काम कर रहा है ना।
यहाँ पे प्लस लगाया अपन, यहाँ पे माइनस के लगाया, यहाँ पे सब तुम्हारा वोल्टेज कितना है, तुम्हारा जितना देना अपन उतना वोल्टेज दे दिए उसे। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ वही है रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू कितना हो गया R1 प्लस R2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस बढ़ गया, पैरेलल का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या है इसका भी डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस पाथ कितना है, रास्ता अलग है लेकिन डिफरेंस उतना ही है ना। V सेम इसमें V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, बट करंट चेंज हो गया, करंट इधर जा रहा है, करंट क्या I1 इधर जा रहा है और I2 इधर, करंट सेम ही जा रहा है, एक ही रास्ता है ना, करंट सेम ही उसमें, यहाँ पे करंट अलग है, इसलिए हमें ब्राइटनेस क्या है इसमें अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, बोलिए। रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा R1 प्लस R2। इसमें आई सेम होगा, आई यहाँ पे भी आया गिरे आप सेम, यहाँ पे भी मेजर कर दे आई की उतनी वैल्यू, क्योंकि आई की करंट किस एमीटर किस में लगा रहे हैं अपन, सीरीज में, रास्ता ही नहीं दूसरा, उसे एक ही रास्ता है। रेजिस्टेंस का क्या फायदा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, वोल्टेज चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है ये दोनों का, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया, यहाँ पे डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस उतना ही है, यहाँ पे डिफरेंस उतना ही है, रास्ते आ रहे हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है, फिर दोनों मिलके यहाँ पे आई जा रहे हैं, आई इक्वल टू I1 प्लस I2, किरचॉफ्स लॉ है ना। देखिए तो यहाँ पर सेम सीरीज, दे आर इन अ सीरीज, तीनों भी सीरीज में, और तीनों भी क्या है यहाँ पे पैरेलल में। पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे एडअप हो गया है, पोटेंशियल इज रिमेन सेम, करंट इज रिमेन सेम, करंट क्या यहाँ पे एडअप हो गया यहाँ पर। रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज बर्न, करंट बिकम्स द इनएक्टिव, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स बर्न्स, करंट स्टॉप्स ओनली थ्रू दैट ब्रांच, वही ब्रांच से नहीं जाएगा, बाकी के ब्रांच में काम कर रहे हैं। अभी वोल्टेज आपने घर पे कितना था, अप्रोक्सीमेटली 230 आता, तो वो अपन कम ज़्यादातर नहीं करते, करना है तो कब करते हैं अपन, डिवाइस चार्जर है तो आप वो ट्रांसफार्मर लगाते हैं अपन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक्सएल मशीन है उसे अराउंड 1000 तक वोल्टेज लगता है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अभी अपन पढ़े नहीं है अभी, है ना, ये समझ में आ गया आपको ये। देखिए तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करना है, पाथ क्या है तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले ही मैं क्या करो, अभी समझो पाथ पूरा कंप्लीट करने के पहले में कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जब करंट लगेगा बल्ब ग्लो होगा आपके नहीं हुए। देखो, सडन फ्लोज ऑफ द लार्ज करंट्स ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल वायर इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। दो करेंगे तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा बल्ब जो लग रहा है, यहाँ पे एक्चुअली जो हाँ ये जो पाथ जो है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या है अभी करंट लगेगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, सर्किट शॉर्ट हो गया ना, यहाँ पे जा रहा है नहीं, निगेटिव तक आया क्या, पूरा नहीं आया, शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या देखो, अभी करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा था, शॉर्टकट जो मिल गया, तो यहाँ पे क्यों जाएगा करंट तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो क्या कन्वीनियंट पाथ देखेगा वो, यहाँ पे अपोजिशन कम है। अभी सपोज यहाँ से जाना है आपको, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है, ये रास्ता खराब है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, है ना, तो आप इस रास्ते से जाओगे तो करंट भी वैसा ही है, करंट भी समझ आ रहे, करंट भी क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है, इसे बोलते शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से जा रहा नहीं तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बल्ब लगेगा ही नहीं आपका, समझ में आ गया ना, आपसे पूछा रहे करंट, करंट भी शॉर्टकट अपनाता है, करेक्ट है ना। तो ये क्या, इसे क्या कहते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट। पाथ इसका इनकम्प्लीट हो गया, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, है ना, यहाँ पे हीट बढ़ रही, देखो यहाँ पे स्पार्किंग दिखाया क्या आपको, ये क्या हो तुम्हारा स्पार्क हो रहा है, हीट हो रही है, नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत कम है वोल्टेज, यहाँ पे नहीं हो गया इतना ही, नहीं जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, क्योंकि कन्वीनियंट पाथ मिल गया ना उसे, कर लेंगे इसका पैकेट, इसका पैकेट कर सकते हैं अपन, हाँ इसका करेंगे, देखो इसका दिखाता मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा बल्ब जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, जब तुम्हारा बल्ब लग रहा था एक, देखो एक बल्ब लग रहा था, जब मैं शॉर्टकट करूंगा तो बल्ब नहीं लगेगा, करंट पास होगा लेकिन बल्ब नहीं लगेगा, समझे। हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्ट सर्किट करके अभी।
यहाँ पे भी क्या है देखो अभी फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अभी क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ही तुम्हारा फॉल्टी है. इंसुलेशंस, द ओल्ड एंड डैमेज इंसुलेशंस अलाउज द न्यूट्रल एंड लाइव वायर. कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में घर में क्या होता है तुम्हारा जीरो का लाइट वगैरह जो है डिम लाइट लगता है, तो बटन बंद करने के बाद में भी होता है क्या, ऐसा किसके पास होता है क्या? हाँ, बहुत बंद करने के बाद में भी. इसका मतलब उनके पास क्या है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं है. तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं होने से क्या हो तुम्हारा न्यूट्रल जो है तुम्हारे अर्थ से ले लेता हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक करता है. इन्वर्टर हो तो भी जनरली ऐसा होता है. टू टॉर्च and causes short circuits, the nail and screw punch as well as that the causes the wire casing the insulations and decorating all that short circuits. लूज कनेक्शन होगा, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो भी बल्ब नहीं लगेगा आपका. द अटेंशंस कैन बी लूज एंड समटाइम्स अलाउइंग द न्यूट्रल एंड लाइव वायर. है न्यूट्रल और लाइव वायर लग गया एक दूसरे को, सर्किट क्या हो गया शॉर्ट, तो पूरा पाथ कंप्लीट नहीं करेगा वो. द fixing the faulty wires, the connections of the different and sometimes requires the working with the wire, है ना. वायर खुला रह गया, फॉल्टी रह गया, तो भी वहाँ पे करंट तुम्हारा काम नहीं करेगा. हाउस होल्ड पेट्स, कुछ एनिमल वगैरह तुम्हारे क्या करते हैं, उस वायर को खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, तो भी द एनिमल्स लाइक mice, rats and squirrels sometimes choose on the wires and they can causes the neutral and live wire. दो वायर के बीच में क्या होया तुम्हारा, वायर में आगे है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे भी तुम्हारा डैमेज होने के चांसेस है, मर जाएंगे ना. दो एनिमल्स के बीच में, दो वायर के बीच में क्या होता है, कभी कभी काफ़ी बार होता है लिजार्ड वगैरह वायर में से चिटक जाती है, तो वहाँ पे उसको शॉक लग जाता है, तो उतने टाइम के लिए करंट उसमें से पास होता है और फिर बाद में डेड हो जाती है, फिर बाद में ड्राई होकर सूखी जाती है, फिर बाद में उसमें पूरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें. अप्लायंसेस ओल्ड और the broken appliances can be developed shorts over the times. Short circuits in appliances can occur in a plugs in the power cords or the device is based and it's look to the short or larger circuits. तो इतना ही था आज के इंस्ट्रूमेंट में. एक बार शॉर्ट सर्किट देखेंगे अपन और फिर वाइंड अप कर देंगे. देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए मैं लेता हूँ, एक ही बल्ब लेता हूँ मैं, देखेंगे शायद चालू होगा क्योंकि हाँ बुलाओ तो बोला था मैं आपको. देखिए तो यहाँ पर वोल्टेज में करता हूँ 2, इसको लगाता हूँ यहाँ पर और इसको लगाता हूँ, देखिए चेक भी हो जाएगी, वेरीफाई भी हो जाएगी कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है. एक ही दिखाता हूँ शायद, देखिए ये गया, चलो है ना, चलो तो क्या हो गया ये, अभी अपन इसको चेंज कर देंगे. 1 मिनट सर, देखिए एक मिनट करंट नहीं लगेगा. तो यहाँ पर बटन बंद है क्या पीछे का, हाँ बल्ब लग गया ये, इसका मतलब है बल्ब बराबर है. देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका शॉर्ट सर्किट करता हूँ, देखो सब करता हूँ. देखो अभी क्या है, देखो ये वायर है बराबर है ना. अभी मुझे क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी बल्ब तक वो जो करंट जो है ना बल्ब तक नहीं जाना है मुझे, बल्ब के पहले मैं क्या कर देता हूँ, उसको रोक देता हूँ. ये इसने वायर लगाया, करंट लगा दिया यहाँ पर, और दूसरा करंट जो है, जो वायर जो है एक्चुअली अब यहाँ पे मुझे करंट नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है, इंसुलेशन है और मेरे पैर में भी क्या है शूज है और एक ही वायर पकड़ा है मैंने, हाथ में भी आएगा. देखो अभी क्या होगा, देखो ये बल्ब, देखो एक मिनट, हाँ यहाँ पे लगाना है, लग गया, शॉर्ट हो गया सर्किट. बल्ब लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना. शूज है मेरे पैर में और ये वोल्टेज 2 वोल्ट है खाली, है ना, समझे. शॉर्ट सर्किट, पाथ पूरा कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा, लग गया. पाथ कंप्लीट हो गया तो लग गया, शॉर्टकट हो गया तो लग रहा है क्या, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट शॉर्ट होता है, इसका मतलब यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं. करंट क्या करेगा, शॉर्ट का पार्ट अपनाएगा. समझ में आ गया, नहीं अभी वो दूसरा है वो, चलो समझ में आ गया. ओके. Now
दिस इज फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट. फिर से अपन एक बार देखेंगे, एक बार और एक बार आप चाहते हैं तो. इफ यू अंडरस्टूड, यस, ओके, सब समझ में आ गया आपको? नाउ आई थिंक द टाइम इज ओवर, गोइंग टू ओवर नाउ. ओके, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल शो टू यू. समझ में आ गया सभी को? Then shall we wind up today's session? Okay, thank you. Thank you, sir.